सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल आदर्श सिंह 5527। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक चोर के बारे में जो चोरी करने तो जाता है परंतु वह किसी और के ऊपर विश्वास करने के कारण उसको जेल जाना पड़ा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. He made locks and was successful enough at his business to have to help us. Yes, Horace Danby was good and respectable but not completely honest. सभी ने सोचा कि होरेस डेनबी एक अच्छे, ईमानदार नागरिक थे। वह लगभग 50 वर्ष का था और अविवाहित था, और वह एक नौकरानी के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी। वास्तव में, गर्मियों में घास के बुखार के हमलों को छोड़कर वह आमतौर पर बहुत अच्छा और खुश था। उसने ताले बनाए और 2 सहायकों के साथ अपने व्यवसाय में काफी सफल रहा। हाँ, होरेस डेनबी अच्छे और सम्मानित थे लेकिन पूरी तरह ईमानदार नहीं थे। 15 years Horace had served his first and only sentence in a prison library. He loved rare expensive books. So he robbed a safe every year. Each year he planned carefully just what he would clothe, stole enough to last for 12 months, and secretly bought the books he loved through an agent. 15 साल होरेस ने जेल के पुस्तकालय में अपनी पहली और एकमात्र सजा काट ली थी। उन्हें दुर्लभ महंगी पुस्तकों से प्रेम था, इसलिए उसने हर साल एक तिजोरी लूट ली। हर साल उसने सावधानी से योजना बनाई कि वह क्या बंद करेगा, 12 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त चोरी करेगा और गुप्त रूप से एक एजेंट के माध्यम से अपनी पसंद की किताबें खरीदेगा। Now, walking in the bright dewy sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking at its rooms, its electric wiring, its paths and its garden. This afternoon the 2 servants, who remained in the Grange while the family was in London, had gone to the movies. Horace saw them go, and he felt happy in spite of a little tickle of hay fever in his nose. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. अब तेज धूप में चलते चलते उसे यकीन हो गया कि इस साल की लूट भी उतनी ही कामयाब होने वाली है जितनी बाकी सभी चोरियों में होती है। 2 हफ्तों से वह शॉटोवर ग्रेंज में घर का अध्ययन कर रहा था, उसके कमरों, बिजली के तारों, रास्तों और बगीचे को देख रहा था। आज दोपहर 2 नौकर, जो ग्रेंज में रहे जबकि परिवार लंदन में था, फिल्मों में गया था। होरेस ने उन्हें जाते हुए देखा और उसकी नाक में घास के बुखार की हल्की सी गुदगुदी के बावजूद उसे खुशी महसूस हुई। वह बाहर आया, बगीचे की दीवार के पीछे से। उसके उपकरण उसकी पीठ पर एक बैग में सावधानीपूर्वक पैक किए गए थे। There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Now he would get the money he wanted to buy them. Grange की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड के गहने थे। अगर वह उन्हें एक एक करके बेचता तो उसे कम से कम 5 मिलने की उम्मीद थी। 1000 उसे एक और साल के लिए खुश करने के लिए काफी है। शरद ऋतु में बिक्री के लिए 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें आ रही थीं। अब उसे वह पैसा मिल जाएगा जो वह उन्हें खरीदना चाहता था। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. He put on a pair of gloves, took the key, and opened the door. He was always careful not to leave any fingerprints. उसने देखा था कि नौकरानी रसोई के दरवाजे की चाबी बाहर एक हुक पर लटकाती है। उसने एक जोड़ी दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाजा खोला। वह हमेशा सावधान रहता था कि कोई उंगलियों के निशान न छूटे। A small dog was lying in the kitchen. It stirred, made a noise, and moved its tail in a friendly way. All right, Sherry, Horace said as he passed. All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. एक छोटा सा कुत्ता किचन में लेटा हुआ था। इसने हड़कंप मचाया, शोर मचाया और मैत्रीपूर्ण तरीके से अपनी ऊंचाई बढ़ाई। ठीक है, शेरी, पास जाते ही होरेस ने कहा। कुत्तों को शांत रखने के लिए आपको बस इतना करना था कि उन्हें उनके सही नामों से बुलाना और उन्हें प्यार दिखाना था। The safe was in the drawing room, behind a rather poor painting. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books. But they took up too much room. In a small house, books were better. There was a great bowl of flowers on the table, and Horace felt his nose tickle. He gave a little sneeze and then put down his bag. He carefully arranged his tools. He had 4 hours before the servants returned. ड्राइंग रूम में तिजोरी थी, उसके पीछे एक घटिया पेंटिंग थी। होरेस ने एक पल के लिए सोचा कि क्या उन्हें किताबों के बजाय तस्वीरें इकट्ठी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा जगह ली। छोटे से घर में किताबें बेहतर थीं। मेज पर फूलों का एक बड़ा कटोरा था, और होरेस को अपनी नाक में गुदगुदी महसूस हुई। उसने जरा सी छींक दी और फिर अपना बैग नीचे रख दिया।
उसने सावधानी से अपने औजारों को व्यवस्थित किया। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे थे। The safe was not going to be hard to open. After all, he had lived with locks and safes all his life. The burglar alarm was poorly built. He went into the hall to cut its wire. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. How foolish people are when they own valuable things. Horace thought. A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. The writer had even mentioned that the painting hid a safe. But Horace found that the flowers were hindering him in his work. He buried his face in his handkerchief. Then he heard a voice say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तिजोरी को खोलना मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार, वह जीवन भर तालों और तिजोरियों के साथ रहा था। बर्गलर अलार्म खराब तरीके से बनाया गया था। वह तार काटने के लिए हॉल में चला गया। वह वापस आया और जोर से चीखा जैसे ही फूलों की महक उसके पास फिर से आई। लोग कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास कीमती चीजें होती हैं। होरेस ने सोचा। एक पत्रिका के लेख ने इस घर का वर्णन किया था, जिसमें सभी कमरों की योजना और इस कमरे की एक तस्वीर दी गई थी। लेखक ने यहाँ तक उल्लेख किया था कि पेंटिंग में एक तिजोरी छिपी हुई है। लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में बाधा बन रहे थे। उसने अपना चेहरा अपने रुमाल में दबा लिया। फिर उसने द्वार से एक आवाज सुनी, यह क्या है? सर्दी या घास का बुखार? Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. The voice went on. "You can cure it with a special treatment, you know. If you find out just what plant gives you the disease, I think you'd better see a doctor if you're serious about your work. I heard you from the top of the house just now." इससे पहले कि वह सोच पाता, होरेस ने कहा, "हे फीवर," और खुद को फिर से चीखते पाया। आवाज चलती रही। आप इसे एक विशेष उपचार के साथ ठीक कर सकते हैं, आप जानते हैं। यदि आपको पता चलता है कि कौन सा पौधा आपको रोक देता है, तो मुझे लगता है कि यदि आप अपने काम के बारे में गंभीर हैं तो बेहतर होगा कि आप डॉक्टर को दिखाएं। मैंने आपको ऊपर से सुना घर अभी। It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. A woman was standing in the doorway, and Sherry was rubbing against her. She was young, quite pretty, and was dressed in red. She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. यह एक शांत था, दयालु आवाज, लेकिन उसमें दृढ़ता के साथ। एक महिला द्वार पर खड़ी थी और शेरी उसके खिलाफ रगड़ रही थी। वह जवान थी, काफी सुंदर थी, और उसने लाल कपड़े पहने थे। वह अंगीठी के पास गई और वहां गहनों को सीधा किया। "Down, Sherry," she said. "Anyone would think I'd been away for a month." She smiled at Horace and went on, "However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar." नीचे, शेरी, उसने कहा। कोई भी सोचेगा कि मैं 1 महीने के लिए दूर हो गया हूं। वह होरेस पर मुस्कुराई और आगे बढ़ी, हालांकि मैं समय पर वापस आ गई, हालांकि मुझे एक चोर से मिलने की उम्मीद नहीं थी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. He replied, "I didn't expect to meet one of the family." She nodded. "I see what an inconvenience it is for you to meet me. What are you going to do?" Horace said, "My first thought was to run. Of course, you could do that. But I would telephone the police and tell them all about you. They get you at once." होरेस को कुछ उम्मीद थी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह उससे मिलकर खुश थी। अगर वह उसके साथ सही व्यवहार करता है तो वह परेशानी से बच सकता है। उसने जवाब दिया, "मुझे परिवार में से एक से मिलने की उम्मीद नहीं थी।" उसने हाँ में सर हिलाया। "मैं देख रहा हूं कि मुझसे मिलने में आपको कितनी असुविधा हो रही है। आप क्या करने जा रहे हैं?" होरेस ने कहा, "मेरा पहला विचार दौड़ना था। बेशक तुम ऐसा कर सकते थे। लेकिन मैं पुलिस को फोन कर दूंगा और उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। वे तुम्हें तुरंत पकड़ लेंगे." Horace said, "I would, of course, cut the telephone wires first and then," he hesitated, a smile on his face, "I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough." She looked at him seriously. "You'd hurt me." Horace paused, and then said, "I think I was trying to frighten you when I said that." होरेस ने कहा, "बेशक मैं पहले टेलीफोन के तारों को काटूंगा और फिर।" वह हिचकिचाया, उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, "मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आप कुछ समय के लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ घंटे लगेंगे बस ए।" उसने उसे गंभीरता से देखा। "क्या तुमने मुझे चोट पहुंचाई?" होरेस रुका और फिर बोला, "मुझे लगता है कि जब मैंने यह कहा तो मैं तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था." "You didn't frighten me," Horace suggested. "It would be nice if you would forget you ever saw me." "Let me go." The voice was suddenly sharp. "Why should I? You were going to rob me. If I let you go, you'll only rob someone else. Society must be protected from men like you." Horace smiled. "I'm not a man who threatens society. I steal only from those who have a lot of money. I steal for a very good reason. And I hate the thought of prison." तुमने मुझे नहीं डराया, होरेस ने सुझाव दिया। "अच्छा होगा अगर तुम भूल जाओगे कि तुमने मुझे कभी देखा था। मुझे जाने दो।" आवाज अचानक तेज थी। "मैं क्यों करूं?
तुम मुझे लूटने जा रहे थे। अगर मैं तुम्हें जाने दूं तो तुम किसी और को ही लूट लोगे। समाज को तुम्हारे जैसे पुरुषों से बचाना चाहिए। होरेस मुस्कुराया। मैं ऐसा आदमी नहीं हूं जो समाज को डराता है। मैं केवल उन्हीं से चोरी करता हूं जिनके पास बहुत पैसा है। मैं एक बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूं। और मुझे जेल के विचार से नफरत है। She laughed and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I'm desperate. Let me go and I promise never to do this kind of thing again. I really mean it. वह हंसी और उसने भीख मांगी, यह सोचकर कि उसने उसे मना लिया है। देखो, मुझे तुमसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन मैं हताश हूं। मुझे जाने दो और मैं वादा करता हूं कि मैं इस तरह का काम फिर कभी नहीं करूंगा। मैं वास्तव में इसका मतलब हूं। She was silent, watching him closely. Then she said, You are really afraid of going to prison, aren't you? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. She picked up a silver box from the table and took a cigarette from it. Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. वह चुप थी, उसे करीब से देख रही थी। फिर उसने कहा, तुम सच में जेल जाने से डरते हो, है ना? वह सिर हिलाते हुए उसके पास आई। मैंने हमेशा गलत तरह के लोगों को पसंद किया है। उसने टेबल से एक चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट ली। होरेस उसे खुश करने के लिए उत्सुक था और यह देखते हुए कि वह उसकी मदद कर सकती है, उसने अपने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दिया। You'll let me go. He held the lighter towards her. Yes, but only if you'll do something for me. Anything you say. Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them, but. क्या तुम मुझे जाने दोगे? उसने लाइटर उसकी ओर बढ़ाया। हाँ, लेकिन तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। कुछ तुम कहो। लंदन जाने से पहले, मैंने अपने पति से अपने गहने हमारे बैंक ले जाने का वादा किया था, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ तिजोरी में छोड़ दिया। मैं उन्हें आज रात एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आई, लेकिन। उद्धरण चिन्ह। Horace smiled. You've forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Yes, replied the young lady. Just leave it to me and you'll have them within an hour. But I'll have to break your safe. Don't worry about that. My husband won't be here for a month and I'll have the safe mended by that time. होरेस मुस्कुराया। आप तिजोरी खोलने के लिए नंबर भूल गए हैं, है ना? हाँ, युवती ने उत्तर दिया। बस इसे मेरे पास छोड़ दो और तुम्हारे पास 1 घंटे के भीतर होगा। लेकिन मुझे तुम्हारी तिजोरी तोड़नी होगी। उसके बारे में चिंता मत करो। मेरे पति 1 महीने के लिए यहाँ नहीं रहेंगे। और मैं उस समय तक तिजोरी ठीक कर लूंगा। And within an hour Horace had opened the safe, given her the jewels, and gone happily away. और 1 घंटे के भीतर होरेस ने तिजोरी खोल दी, उसे गहने दिए, और खुशी खुशी चला गया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady. On the morning of the third day, however, he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe. But he never got the chance to begin his plan. By noon a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shotover Grange. 2 दिनों तक उसने दयालु युवती से अपना वादा निभाया। हालांकि तीसरे दिन की सुबह उसने उन किताबों के बारे में सोचा जो उसे चाहिए थीं और वह जानता था कि उसे दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी। लेकिन उन्हें अपनी योजना शुरू करने का कभी मौका नहीं मिला। दोपहर तक एक पुलिसकर्मी ने उसे शॉटोवर ग्रेंज में गहना लूट के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. उसके उंगलियों के निशान, क्योंकि उसने दस्ताने के बिना तिजोरी खोली थी, पूरे कमरे में थे और किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि घर के मालिक की पत्नी ने उसे उसके लिए तिजोरी खोलने के लिए कहा था। खुद पत्नी, भूरे बालों वाली, 60 साल की तीखी जीभ वाली महिला ने कहा कि कहानी बकवास थी। Horace is now the assistant librarian in the prison. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was, and who tricked him. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. होरेस अब जेल में सहायक लाइब्रेरियन है। वह अक्सर आकर्षक, चतुर युवा महिला के बारे में सोचता है जो उसी पेशे में थी जिसमें वह था और जिसने उसे धोखा दिया। जब कोई चोरों में इज्जत की बात करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। और कहानी यहीं पर खत्म होती है और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।